In the last class, I did motional EMF, right? If there's a conductor moving perpendicular to the magnetic field, so at the ends of the conductor, this much EMF would be induced. Also, if there's a conductor rotating with angular speed omega, the formula was half B omega L square. This is motional EMF, and this formula holds true only when B, L, and V are mutually perpendicular. If any two are parallel, then the induced EMF would be zero. If any two are parallel, then induced EMF would be zero. क्वेश्चन कर लेते हैं. Suppose we have uniform magnetic field which is into the plane of the board like this, and it is 400 Gauss. This is a magnetic field, and there's a wheel which is made of metallic conductor, and it has spokes also. Wheel, it has radius 50 centimeter, and the number of spokes are say 24. It is being rotated with angular speed. Angular frequency. Frequency has been given 120 revolution per minute. A wheel having radius 50 centimeter and 24 spokes is rotated with frequency 120 revolutions per minute. ठीक है? तो इससे you can find omega, which is 2 pi f, but convert revolution per minute into revolution per second. ठीक है? Find induced EMF between the center and the circumference, and also find induced EMF between across the spoke, like two spokes, or you can say the diameter AB. कर लो. Induced EMF between O and A, and induced EMF between A and B. Induced EMF between O and A, and induced EMF between A and B. मनन कौन सा चैप्टर चल रहा है स्कूल में? Chapter 4. कौन सा? Fourth, sir, fourth. बोर्ड्स. So chapter 4. अच्छा, 4. मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट. Yes, sir. Yes, sir. वो तो हमने कर लिया ढंग से ना, समझ में आ रहा होगा वहां पे. हाँ सर. ठीक, ये कर लो. Find omega. Omega is 2 pi f. But before that, you need to convert frequency into revolutions per second. So 120 revolution per minute divided by 60 will be RPS. Revolution per second. Revolution per second is also called hertz. Then you can find omega. Omega is 2 pi f. Omega is 2 pi f.
Between O and A, you'll take L. Hmm. देख सोचो तुम. Between O and A, it would be half BL square omega. So 1/2 गॉस को कन्वर्ट करना पड़ेगा. गॉस को टेस्ला में कन्वर्ट करो 10⁻⁻⁴. और एल इज 50 सेंटीमीटर, तो मतलब 1/2 मीटर हो गया वो. एंड 2 πf क्या आएगा? ये कट जाएगा. 200 π इंटू 10⁻⁻⁴ हम्म. So this is the voltage across one spoke. What about across the diameter? Across diameter क्या आंसर आना चाहिए गरिमा? सोचो, बताओ सोच के. Across the diameter answer would be 0. Why? The reason for the same is that they are all in parallel. O पे अगर 0 वोल्टेज है तो A पे वोल्टेज इतना होगा. हर पूरी सरकमफ्रेंस पे सेम वोल्टेज होगा. ए पे भी बी पे भी. तो जब पोटेंशियल सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा. एंड दूसरी बात, नंबर स्पोक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एन विल बी of no significant. In the wheel, number of spokes are of no use because the circumference of the wheel and the center is, they are in parallel. तुमने देखा था ना, पैरेलल में वोल्टेज अगर तुमने बैटरीज कनेक्ट कर दी कई सारी तो वोल्टेज सेम रहता है. अगर पैरेलल में कई सारी बैटरीज कनेक्टेड हैं, डजंट मेक अ डिफरेंस, ईएमएफ रिमेन द सेम. तो जितने भी स्पोक्स हैं सबके अक्रॉस सेम वोल्टेज है, तो दे आर ऑल इन पैरेलल, दे वोंट मेक अ डिफरेंस. ठीक है. Suppose this is a circuit which contains a bulb, a battery, and a key. This is a bulb. Another circuit which contains a coil like this, which has zero resistance. It has no resistance, but it is like solenoid. So there are two circuits, circuit 1, circuit 2. इस मोमेंट पे करंट इन द सर्किट इज 0. ठीक है. तो सिंस सर्किट इज ओपन, करंट इज 0. डायग्राम बना लो एक बार. अब हम क्या करते हैं, वी प्रेस द की इज प्रेस्ड, दैट इज सर्किट इज क्लोज्ड. So the moment you close the circuit, we see that bulb is on with full intensity in the circuit number 1. पहले वाले सर्किट में इमीडिएटली करंट 0 से मैक्सिमम हो जाती है and the bulb glows to full intensity. In a very short time, current becomes maximum. This time period is very short. Time lag जिसको बोलते हैं, it's very short. The moment you press the key, there'll be
हमें कैसे पता लगा करंट मैक्सिमम हो गया? मतलब बल्ब विल ग्लो टू फुल इंटेंसिटी, इमीडिएटली द बल्ब विल ग्लो टू फुल इंटेंसिटी, मतलब सर्किट मैक्स करंट मैक्सिमम हो गया। जबकि सेकंड वाले सर्किट में we see that the moment we press the key, current or the bulb will not glows to full intensity, but slowly glows to full intensity। मतलब करंट को मैक्सिमम होने में टाइम लगता है। मतलब इस बार जो टाइम लैग है, टाइम लैग बिटवीन द प्रेसिंग ऑफ द की एंड switching of the bulb to full intensity, glowing of the bulb to full intensity is large। टाइम लैग काफी बड़ा है। दिस इज a coil of zero resistance। इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कॉइल सिर्फ, हाँ। नहीं, पाथ से फर्क नहीं पड़ता। अगर जब तुम रूम में की वो प्रेस करते हो, स्विच ऑन करते हो, तो इमीडिएटली लाइट बल्ब जल जाता है, चाहे वो यहाँ हो चाहे दूर हो। मतलब उससे सी द इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये नहीं कि तुमने बल्ब सर्किट की को प्रेस किया, इलेक्ट्रॉन चल के वहां पहुंचे, बोले यस आई हैव रीच्ड ऑन। ऐसा नहीं है। द मोमेंट यू प्रेस, पूरे सर्किट में एवरीवेयर द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिक फील्ड सेट अप विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ टाइम लैग। यहाँ पे क्या रीजन हो सकता है, सोचो कि सेकंड वाले सर्किट में टाइम लैग क्यों हो रहा है? नहीं, इट्स नॉट ड्यू टू एडी करंट। समझते हैं। टी इज इक्वल टू जीरो पे इस सर्किट में करंट कितना था? जीरो था, ओपन था सर्किट। द मोमेंट वी प्रेस द की, तो क्या होगा? करंट स्टार्ट इंक्रीजिंग। जब करंट इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड, तो कॉइल है ना सोलेनॉइड की तरह, सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? ये भी इंक्रीज करेगा। एज अ रिजल्ट क्या होगा? फ्लक्स इन द कॉइल विल ऑल्सो इंक्रीज। और जब फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब फ्लक्स इंक्रीज होगा, दिल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट। फिर आ जाएंगे आपके भाई साहब लेंजेस, वो अपनी टांग अड़ाएंगे कि फ्लक्स क्यों इंक्रीज हो रहा है, व्हाट इज द कॉज, फ्लक्स क्यों इंक्रीज हो रहा है भाई? गरिमा, फ्लक्स क्यों इंक्रीज हो रहा है? ये कॉज है, फ्लक्स इसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है, करंट इज इंक्रीजिंग। उसमें तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? उसमें मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। उस वाले में तो कोई सिर्फ वायर है, वहां तो मैग्नेटिक फ्लक्स है ही नहीं कहीं पे, मैग्नेटिक फील्ड कहीं भी नहीं है वहां तो कॉज इज द करंट इज इंक्रीजिंग, तो लेंजेस के अकॉर्डिंग इट विल अपोज द कॉज, मतलब करंट को बढ़ने से रोकेगा। सो इंड्यूस्ड करंट will flow opposite to मेन करंट। जैसे तुम बाल्टी पानी से भर रहे हो, बकेट पानी से भर रहे हो, तो उसको भरने से कैसे रोकोगे? उसमें छेद कर दो नीचे। तो वो यहाँ पे हो रहा है। लेकिन इंड्यूस करंट इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो मेन करंट को रोक पाए, तो अल्टीमेटली इट टेक टाइम टू बिल्ड टू मैक्सिमम। यस। सो हम्म नो, अपोज, अगर सपोज 10 एम्पियर इधर जा रहा है, 2 एम्पियर उधर से आया, तो 8 हो गया ना, तो कम हो गया। फिर धीरे धीरे फिर बढ़ जाएगा। द मोमेंट करंट इज मैक्सिमम, तो फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, दोनों इंड्यूस करंट। दिस इज अ वेरी शॉर्ट। हाँ, जब करंट कांस्टेंट हो जाएगा आई मैक्स बनने के बाद, तो फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, नो चेंज इन फ्लक्स, नो इंड्यूस करंट। सो दिस फिनोमेना इज वेरी शॉर्ट।
ये जो फिनोमेना हो रहा है इसे फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, मिली सेकेंड्स। बात समझ में आ गई भव्या, शनाया? Yes, sir. तो इसको लिखो, फिर आप इसको मैं इसको वर्ड्स में लिखवाता हूँ, ठीक है? इसका भी सेकंड पार्ट भी है। असमें तुम स्कूल गई थी आज? तो क्लास तो सेम टाइम पे आ सकती हो, तो इसका तुम आधे घंटे पहले चलो। जब तुम स्कूल नहीं जा रही हो, चलो जल्दी बनाओ डायग्राम, फिर मैं लिखवाऊंगा ये। इसका एक सेकंड पार्ट भी, वो भी अभी कर लेते हैं साथ साथ। सपोज सर्किट में करंट ऑलरेडी फ्लो कर रहा है, करंट मैक्सिमम, बल्ब ग्लो कर रहा है, ठीक है? अब हम क्या कर रहे हैं, स्विच स्विच ऑफ कर देते हैं। सर्किट इज स्विच्ड ऑफ। तो इस बार क्या देखोगे कि पहले वाले में, फर्स्ट केस में, द करंट बिकम इमीडिएटली जीरो। कैसे पता लगेगा हमें कि करंट जो है वो, बल्ब विल गो ऑफ इमीडिएटली, है ना? टाइम लेग इज वेरी शॉर्ट। सर्किट को जैसे ही हमने स्विच ऑफ किया, करंट मैक्सिमम से जीरो हो गई, हमें कैसे पता लगा? बल्ब विल गो ऑफ इमीडिएटली, बल्ब बंद हो जाएगा। लेकिन सेकेंड पार्ट ऑफ द सर्किट में विल नोटिस दैट करंट इज टेकिंग टाइम, मतलब बल्ब धीरे 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 ऑफ होगा। इट टेक टाइम, टाइम लैग बढ़ जाएगा। सेकेंड वाले में टाइम लैग बढ़ गया। कैसे एक्सप्लेन करोगे इसको? हाँ, अब जरा देखो, टी इज इक्वल टू जीरो पे जो सर्किट फुल चल रहा था, करंट वॉज मैक्सिमम, आई वॉज आई नॉट और मैक्स। द मोमेंट यू स्विच इट ऑफ एट टी इज इक्वल टू टी, करंट स्टार्ट डिक्रीजिंग। जब करंट डिक्रीज करेगा तो इससे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करने से क्या होगा? फ्लक्स डिक्रीज करेगा। फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो लेंजेस को पसंद नहीं आएगा, वो बोलेगा अपोज द कॉज। कॉज क्या है? कॉज है कि करंट डिक्रीज हो रहा है। बाल्टी भरी हुई, उसमें छेद हो गया तो पानी बह रहा है, तो नल खोल दिया ताकि वो भरी रहे। तो हाँ, उसका रीजन उसका रीजन ही यही है ना कि इंड्यूस करंट कम होती है, हमेशा मेन करंट से कम होगी। तो कॉजेज करंट इज डिक्रीजिंग, लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग induced will current will flow in the same direction. Induced current will flow in the same direction as I, उसको सपोर्ट करेगा वो। तो इस बार क्या होगा, जब सर्किट को तुम ब्रेक कर रहे हो, तो करंट की डायरेक्शन इज द मेन, सेम एज द मेन करंट। ये क्लियर हो गया मनन? ये सारा जो Yes, sir. फिनोमिना है, इट इज बेसिकली कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। नो, इट कांट बी, अदरवाइज तो करंट ऊपर उल्टी डायरेक्शन में हो जाएगा। वो भी कम था। हाँ, तो उसको सपोर्ट कर रहा है। जैसे 10 एम्पियर से 9 हो गया, तो उसने सपोर्ट कर 0.5 कर दिया, तो 9.5 हो गया। मतलब उसको डिक्रीज होने में टाइम लग रहा है। जीरो होने में अल्टीमेटली डिक्रीज होना ही, बिकॉज देयर इज नो सोर्स ऑफ करंट। इंड्यूस करंट विल बी ऑलवेज बी लेस। इसमें लिख लिया, बना लिया डायग्राम, फोटो ले लिया, ठीक है। अब पहले वाला का कहानी लिखते हैं। लिखो, व्हेन, हम इस सर्किट की बात कर रहे हैं, ये वाला सिचुएशन जब इनिशियली करंट नहीं था। व्हेन की इज प्रेस्ड, व्हेन की इज प्रेस्ड, current start current starts increasing in the circuit.
due to which magnetic field capital B, and hence magnetic flux phi also increases in the coil. Also increase magnetic flux phi also increases in the coil. तो coil में magnetic flux भी increase करेगा. This change in magnetic flux will induce this change in magnetic flux will induce EMF and current in the circuit due to electromagnetic induction ब्रैकेट में लिख लो कैपिटल में EMI ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ब्रैकेट में कैपिटल लेटर्स में EMI. क्लियर? अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ, आगे अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ, induced current will oppose the cause. According to Lenz's law, induced current will oppose the cause. The cause is current is increasing. The cause is current is increasing. Therefore, current will flow. Therefore, induced current will flow in the opposite direction. To the main current. As a result, main current will take time to become zero. That is why bulb gradually goes off. तो ये इसका आंसर है. सेकंड पार्ट का भी कर लेते हैं. सेकंड पार्ट में ऑलरेडी करंट फ्लो कर रहा है. दिस यू सी द इंड्यूस करंट का फिनोमेना, EMI का फिनोमेना तभी तक एग्जिस्ट करता है जब तक फ्लक्स चेंज होता है. तो आफ्टर सम टाइम करंट बिकम्स मैक्सिमम, so no induced EMF, no change in magnetic flux. नेक्स्ट लिखो ये वाला पार्ट. जब सर्किट में करंट ऑलरेडी था, बल्ब फुल इंटेंसिटी पे ग्लो कर रहा था, हमने उसको स्विच ऑफ किया तो बल्ब गोज ऑफ ग्रेजुअली, वो धीरे धीरे ऑफ होता है. लिखो इनिशियली करंट इज maximum in the circuit. Initially, current is maximum in the circuit, and the bulb glows to full intensity. When circuit is switched off, current starts decreasing. Resulting in decrease in magnetic flux, decrease in magnetic field लिख लो पहले, decrease in magnetic field, and hence decrease in magnetic flux. Decrease in magnetic field and hence decrease in magnetic flux, which results in induced EMF and current. According to EMI.
electromagnetic, hmm, resulting in induced current and EMF, resulting in induced EMF and current due to electromagnetic induction. According, आगे लिखो, according to Lenz's law, according to Lenz's law, induced current flows in the same direction. According to Lenz's law, induced current flows in the same direction as the main current so as to oppose a cause. So as to oppose the cause. That is why the bulb goes off gradually. ये होता है. एक बार इसको पूरा देख लो, समझ लो, और फिर मैं इसकी डेफिनेशन फॉर्मुले करेंगे. सेल्फ इंडक्ट, दिस प्रॉपर्टी इज बेसिकली सेल्फ इंडक्टेंस. कर लो, आराम से कर लो एक बार रिवाइज को. प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ इंडक्शन. तो सेल्फ इंडक्शन में हमने देखा कि एक कॉइल अपने आप में ही करंट और ईएमएफ इंड्यूस कर रही है. तो दिस ऑल्सो सेड टू बी प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया. जैसे होता है ना, इनर्शिया हमने मैकेनिक्स में पढ़ा था. अगर तुम रेस्ट पे हो, बस रेस्ट पर है, इमीडिएटली बस मूव करती है, तो यू टेंड टू गो बैकवर्ड बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट. अगर बस ऑलरेडी मोशन में, तो बस स्टॉप होती है, तुम यू फॉल फॉरवर्ड, इनर्शिया ऑफ मोशन. तो दिस इज बेसिकली मैग्नेटिक इनर्शिया. मतलब हो यह रहा है कि अ करंट और एक कॉइल इज इंड्यूसिंग करंट और ईएमएफ इन इटसेल्फ. व्हाई? बिकॉज ऑफ ड्यू टू द चेंज इन
करंट, अगर हम किसी कॉइल में करंट को चेंज करें, चेंज का मतलब चाहे इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, तो कॉइल क्या कर रही है, खुद ही अपने आप में करंट को इंड्यूस कर रही है। जैसे सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं इसको, इसीलिए। तो अब सेल्फ इंडक्शन की उसकी डेफिनेशन लिखो। सेल्फ इंडक्शन इज self induction is property by virtue of which self induction is property by virtue of which a coil induces EMF or current. A coil induces EMF or current in itself. A coil induces current or EMF in itself when current is changed in it. When current is changed in it. तो तुमने यहाँ नोटिस किया, एज लॉन्ग एज करंट इज चेंजिंग तभी उसमें इंड्यूस करंट था, अदरवाइज नहीं था। बिकॉज जब करंट चेंज होता है तो फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होता है ईएमआई आएगा। दिस इज सेल्फ प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्शन। तो अगर किसी कॉइल में करंट आई है जो कि वेरिएबल है, चेंज हो रही है, तो एज सच फ्लक्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज फ्लक्स होता है एन बी ए, और बी क्या होता है, म्यू नॉट एन आई। किसी भी सोलेनॉइड या कॉइल में बी इज म्यू नॉट एन आई। व्हाट इज स्मॉल एन? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये हमने किया हुआ है। एल इज द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, एन इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड। और if you remove the sign of proportionality, you bring in a constant, and this constant is nothing but L. L is a constant for the given coil. It is called coefficient of self-inductance. And it depends upon geometry of the coil. कितने टर्न्स हैं उसमें, कितनी उसकी लेंथ है, उसमें क्या फिल है। जैसे कैपेसिटर में था ना, कैपेसिटर में वी और आई पे डिपेंड नहीं कर रहा था, वी और क्यू पे। एल आई और फाइव पे डिपेंड नहीं करेगा। द मोमेंट आई इज जीरो, फाइव इज ऑल्सो जीरो, बट एल इज नॉट जीरो। एल इज, अभी डिराइव भी करेंगे फॉर्मूला फॉर एल। एल इज अ कांस्टेंट विच डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल। सोलेनॉइड पे डिपेंड करेगा कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, कितनी लेंथ है, उसके अंदर मीडियम क्या फिल है, उन सब पे डिपेंड करता है ये। दूसरा, इफ आई डिफरेंशिएट दिस तो क्या आएगा, डी फाइव बाई डी टी इज इक्वल टू, एल तो कांस्टेंट है, डी आई बाई डी टी। व्हाट इज डी फाइव बाई डी टी? डी फाइव बाई डी टी अकॉर्डिंग टू ई एम आई, second law of electromagnetic induction, d phi by dt is minus e. The rate of change of magnetic flux equals to induced EMF. तो यहाँ पे di by dt क्या है? di by dt is the rate of change of current. इस फॉर्मूले को तुम चाहो तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, माइनस ई इज इक्वल टू एल डेल्टा आई बाय डेल्टा टी, चेंज इन करंट, और आई टू माइनस आई वन बाय डेल्टा टी, ऐसा भी लिख सकते हो न्यूमेरिकल्स के लिए। अब यहां से वी कैन फाइंड डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एल।
देखो एल का क्या यूनिट होगा, सबसे पहले तो यहाँ से निकाल सकते हो तुम, पाई बाय आई, पाई बाय आई है ना। तो वेबर इज यूनिट ऑफ फ्लक्स पर एम्पियर। ये सारे एमसीक्यूज उसमें आ सकता है ये, वेबर पर एम्पियर। वेबर का दूसरा होता है टेस्ला मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर, सेकेंड यूनिट हो गया। फिर एक और यूनिट यहां से निकाल लो इस फॉर्मूले से, ई हो जाएगा वोल्ट, डी आ जाएगा एम्पियर, टाइम ऊपर चला जाएगा सेकंड, जाएगा वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, दैट इज। और एक और यूनिट है हेनरी, on the honor in the honor of the name of the scientist who discovered this phenomena। इतनी सारी है यूनिट्स हैं। एग्जाम में तीन लिखी हुई, इससे पूछेंगे विच वन इज नॉट। ये एक यूनिट दे रहा है, दे लास्ट यू, हाँ किसका यूनिट है। नहीं सारी ऐसा ही है, सारी इक्वल नहीं है। नहीं वो करते हैं लेकिन वैसे सारा इक्वल है ये, वन दिस इक्वल वन दिस वन दिस वन दिस। टेस्ला मीटर स्क्वायर एम्पियर भी ऐसा ही है, ठीक है। ये इसे नाम की जो यूनिट होती है उसको एब्सोल्यूट यूनिट भी बोलते हैं, बट ऐसा ही यूनिट भी है वो सर। तो दे माइट गिव यू क्वांटिटी दैट dimensional formula or the unit of L is, and four options like that. Or they might give you unit and they ask you which physical quantity does it mean। बहुत सारी चीजें हैं। अब यहां से हम L को भी डिफाइन कर सकते हैं ना। किसी भी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस कैसे डिफाइन करोगे, देखो जरा आप। अगर मैं, इफ आई टेक I इज इक्वल टू 1, तो फिर क्या होगा, फाई इक्वल टू L हो जाएगा। उससे भी आ जाएगा, पहले इससे कर लो। सेल्फ coefficient of self inductance of a coil equals to the flux in the coil when the current is 1 ampere। लिख लो पहली डेफिनेशन coefficient of self inductance की। the coefficient of self inductance the coefficient of self inductance of a coil numerically equals to the flux through it numerically equals to magnetic flux through it when current in the coil when the current in the coil is 1 ampere, when the current in the coil is 1 ampere। ये एक डेफिनेशन हो गई। दूसरी डेफिनेशन हम यहां से निकाल लेते हैं ईएमएफ से, ठीक है। अगर मैं डेल्टा आई बाय डेल्टा टी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को 1 ले लेता हूँ, 1 एम्पियर पर सेकेंड, देन व्हाट हैपेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ ई इज इक्वल टू एल। यहां से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। लिखो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए क्वाइल, कोएफिशिएंट ऑफ self inductance of a coil equals to self inductance of a coil equals to magnitude of magnitude of induced EMF equals to the magnitude of induced EMF in the coil when the rate of change of current in the coil is 1 ampere per second, when the rate of change of current in the coil is 1 ampere per second।
तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसका फॉर्मूला भी डिराइव कर लेते हैं। सपोज वी हैव अ सोलेनॉइड और a coil of length L and number of turns capital N, small number of turns N होगा, number of turns per unit length. So the current in the coil is I on our diagram. So when current is flowing through the solenoid, what will be the magnetic field? B will be mu naught Ni, है ना? इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A ले लेते हैं, which is pi r square. L is the coefficient of self induction. So we know that 3 मार्क का आ सकता है फॉर्मूला डिराइव करना, पाई इज इक्वल टू एल आई, है ना? वी नो दैट फाई तो एल आई के बराबर है, फिर फाई इज एन बी ए कॉस जीरो। कॉस जीरो क्यों का? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड जो है इट इज पैरेलल टू द एरिया वेक्टर। कॉइल का जो एरिया वेक्टर वो भी ऐसे ही होगा। फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा एंड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई और म्यू नॉट एन आई बाय एल। आई से आई कट जाएगा, so we get the formula for L. एक फॉर्मूला ही आ गया हमारा। देखो, सो द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल में ना तो कोई करंट का कोई रोल नहीं है, ना कि फ्लक्स का कोई रोल है। अगर इस फॉर्मूले में मैं ऊपर नीचे एल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ये जो ब्रैकेट में क्वांटिटी बन जाएगी स्मॉल एन का स्क्वायर, है ना? So this is the formula for coefficient of self inductance. ये जो कॉइल है ये है एयर कोल्ड, मतलब इनसाइड द कॉइल वी हैव नो अदर मीडियम बट एयर। एयर कोल्ड कॉइल है। लेकिन अगर इस कॉइल के अंदर हम किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को प्लेस कर दें, फील्ड चेंज हो जाएगा फिर, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। अगर फेरोमैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, पैरा उस पर डिपेंड करेगा। तो उस केस में मीडियम जब आ जाएगा तो उसकी जो
सेल्फ इंडक्टेंस है वो एल टाइम म्यू आर टाइम्स बढ़ जाएगी. व्हाट इज म्यू आर? रिलेटिव परमिएबिलिटी. म्यू आर इज रिलेटिव परमिएबिलिटी, जो कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए बहुत ज्यादा होती है. आयरन की 1900 होती है, मतलब उसका सेल्फ इंडक्टेंस 1900 टाइम बढ़ जाएगा. पैरा की भी काफी बड़ी होती है, हंड्रेड्स में होती है. डाई की लेस देन 1 होती है. डायमैग्नेटिक में वो कम हो जाता है. वो प्रॉपर्टीज याद कर लेना, वो 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा. ये मैंने टेबल बना के दिया ना नोट्स में. प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एंड द पैरामैग्नेटिक. अब एक बार इसको याद कर लो, फिर इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे. असाइनमेंट दिखाना. 35 36 करूं? 35 और 36 का फर्स्ट पार्ट. क्वेश्चन 35 एंड 36 का फर्स्ट पार्ट. इससे पहले जो हमने फॉर्मूले किया था ना, उस वाले से होगा वो, ये वाला. पढ़ो एक बार क्वेश्चन. क्या है क्वेश्चन? समझ में आ गया क्या करना है? हाँ, तो I1 I2 दे रखा है. हाँ. तो इंड्यूस वोल्टेज यहाँ से आएगा, लेकिन एल नहीं दिया रखा है. अच्छा. नहीं, स्मॉल एन दे रखा है ना, एरिया भी दे रखा है. एल निकालना पड़ेगा तुम्हें. हाँ. म्यू नॉट तो तुम्हें पता है कांस्टेंट होता है. म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷. यूज दिस. फर्स्ट फाइंड कैपिटल एल यूजिंग दैट. अभी किया था ना फॉर्मूला, ये वाला. इससे आ जाएगा. म्यू नॉट पता है, एन स्मॉल एन दे रखा है, वो पर सेंटीमीटर पर मीटर है. को पर मीटर में कन्वर्ट करो. हाँ. एरिया को भी मीटर में कन्वर्ट करो. पहले कैपिटल एल निकाल लो. फाइंड कैपिटल एल ऑफ द सोलेनॉइड and that you use to find E.
फर्स्ट यू फाइंड एल कितना है उसका सोलेनॉइड का। हाँ, ए इज द एरिया। एल भी दे रखा है ना, दे रखा है, लेंथ दे रखा है, लेंथ ऑफ कॉइल दे रखा है ना शायद। अच्छा, ठीक है, और कुछ नहीं है। मतलब लेंथ नहीं दिया रखा, तो बिना लेंथ के तो हम फाइंड नहीं कर सकते, बिकॉज एल इसमें भी यूज होगा, एल उसमें भी यूज होगा। लेंथ को क्या करना है फिर। हाँ, नहीं 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 वो तो नंबर ऑफ टर्न से पर, लेंथ को ले लोगे या तो 1 मीटर लेके कर लो। गूगल सर्च से मिल जाएगा क्वेश्चन, देखो मिल जाता है, तो एल वहां से ले लेते हैं। लेंथ ऑफ द सोलोनॉइड नहीं है ना, मिसप्रिंट है थोड़ा सा। नहीं दे रखा है, लेंथ 1 मीटर लेके कर लो। टेक लेंथ इज 1 मीटर। एल इज म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। स्मॉल एन कितना है, 15, 0 पर सेंटीमीटर है ना, तो पर मीटर में हो जाएगा 1/100 करना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, उल्टा करो, कितना दे रखा था बताओ मुझे पहले। हाँ, N is 15 टर्न्स, ऐसे देखो इसको, पर सेंटीमीटर राइट। इसको तुम्हें कन्वर्ट करना है 15 टर्न्स पर मीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो जाएगा 1500। भाई वैसे देखो, अगर 1 सेंटीमीटर में 15 टर्न है, तो 1 मीटर में ज़्यादा ही तो होंगे बस। सो इट इज 1500। एरिया कितना दे रखा है, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर को × 1 ले लिया मैंने, ठीक है। एल निकालो, और 10 टू द पावर कितना आ रहा है। नहीं नहीं, 10 टू द पावर -7 -4 -11 हो जाएगा, तो बहुत बड़ा आएगा। एन स्क्वायर नहीं होगा एन इंटू स्क्वायर, अच्छा एन स्क्वायर भी है, सॉरी राइट। तो 4 पाई 10 टू द पावर -7, 15 स्क्वायर जाएगा 225। हम्म, ये इससे कट जाएगा। 8 पाई × 225, 10 टू द पावर -7, 225 × 8,
225 इंटू 2 हो जाएगा 450, 450 इंटू 2 हो जाएगा 900, 1800 हो गया ये, 1800 पाई, 18 पाई 10⁻⁻5 हेनरी। अब वाला फॉर्मूला लगा दो। माइनस ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। तो फाइनल करंट कितना है? इनिशियल फाइनल करंट कितना है? 4। इनिशियल डायरेक्शन चेंज सेम है, ऑपोजिट को होगी, कुछ का है? बस टाइम। सो 18 पाई 10⁻⁻4 इंटू 2, 36 पाई 10⁻⁻4 वोल्ट। 36 पाई करना 1000 का 100.09, तो 1.13 10⁻⁻2 वोल्ट। अगर देखो लेंथ 1 मीटर होगा तो इतना वोल्टेज इंड्यूस होगा। आंसर पीछे क्या दे रखा है? माइक्रो वोल्ट। मतलब लेंथ जो है इट इज नॉट 1 मीटर। लेंथ 7.5 को 1.13 से डिवाइड करना कितना आता है? 7.5 को 1.13 से डिवाइड करो, 6 पॉइंट। तो लेंथ इसका मतलब हो जाएगा 6 सेंटीमीटर के बराबर, 6। चलो ठीक है, अब तुमने 1 मीटर से कर लिया बिकॉज इट वॉजंट गिवन टू अस। थर्ड। हाँ, तो आंसर तो वही आएगा। हाँ, तो बिना लेंथ के कैसे कर लोगे? तो डी एल तो आएगा। नहीं नहीं, इसमें एल, इन्होंने एल मिस कर दिया ना। सेल्फ इंडक्टेंस में एल तो आता ही है। हम्म। हम्म। एल में एल वो तो आएगा कैपिटल में। नेक्स्ट करो 30। कौन सा था? 36 का फर्स्ट पार्ट। हम्म। तो डिफरेंशिएट कर दो तो ये आ जाएगा ना। फाई का एक्सप्रेशन दे रखा है ना उस क्वेश्चन में। फ्लक्स कितना दे रखा है? 3t²। तो डिफरेंशिएट दिस। टाइम दे रखा है 3। 14 वोल्ट। किसको? किस वाले में? नहीं, इसमें तो एल आएगा ही नहीं ना, डिफेबिलिटी। दिस इज यूजिंग ईएमआई। अकॉर्डिंग टू ईएमआई माइनस ही होता है डिफेबिलिटी। ये यूज किया है यहाँ पे। इट्स नॉट ऑन सेल्फ इंडक्टेंस, ये ईएमआई का क्वेश्चन है। तो अगर फ्लक्स वेरी कर रहा है टाइम के टर्म में तो ये हो जाएगा।
37 भी कर लो। 37, 39। 37, 39 करो। गरिमा क्वेश्चन पढ़ो 37। The wheel with 10 metallic spokes, each 0.5 meter long, is rotated with a speed of 120 revolutions per minute in a plane normal to the Earth's magnetic field at the place. If the magnitude of the field is 0.4 g, what is the induced EMF between the axle and his rim of the wheel? ओके, मतलब वो वाला फॉर्मूला यूज होगा, हाफ बी एल ओमेगा स्क्वायर, बी एल स्क्वायर ओमेगा। फ्रीक्वेंसी को तुम पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना। ओमेगा इज 2 पाई एफ। फ्रीक्वेंसी को रेवोल्यूशंस पर सेकंड में कन्वर्ट करो, आंसर आ जाएगा। गॉस को, हाँ, 1 गॉस इज 10⁻⁻⁴ टेस्ला। श्रेया आ गया आंसर। Nice. फ्रीक्वेंसी को रेवोल्यूशन पर मिनट से आरपीएस में कन्वर्ट करना था, कितना दे रहा था एफ? 120 आरपीएम। हम्म
2 words. भव्य आंसर आ गया? मनन तुम्हारा आंसर? कर रहा हूँ सर अभी। कौन सा हो गया? दोनों? 739 था ना? बस में हो गया? 6.28 into 10 to the power minus 5 R. पीछे चेक करो आंसर एक बार। बी कितना दे रखा था? 0.4 0.1। 0.4 Gauss. गॉस को करो कन्वर्ट, -4 हो गया। लेंथ कितना था? 0.5. मीटर। हाँ, ओमेगा हो जाएगा 2πf। इसको 1/2 ले लो, 1/4 हो गया। 2 पाई इंटू 10⁻⁵ 6.28 10⁻⁵ वोल्ट। नेक्स्ट 39 करो। मैथ्स से बजाय भाई, जब ये डिस्कवर हुआ था तब तो डिफरेंशिएशन भी नहीं था ना ज़्यादा साइंसेस में। डिफरेंशिएशन साइंसेस केम लेटर। या कुड बी। पेज 1 ISC 25 का क्वेश्चन बी पार्ट देखो, असाइनमेंट के पेज 1 में देखो।
सेकंड क्वेश्चन जो है ना आईएससी 2025 का, उसका बी पार्ट करो असाइनमेंट के फर्स्ट पेज में। सेकंड क्वेश्चन आईएससी 2025, उसमें लिखा है कैपिटल बी पार्ट, आंसर दैट। मिल गया? मिला क्वेश्चन? हो गया? ये करो। हो गया? डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन था, बहुत सिंपल पेपर था लास्ट ईयर तुम्हारा आईएससी का। आईएससी का बहुत सिंपल पेपर आया था। हाँ, स्ट्रेट लेंजेस वैसे सीबीएसई का है तो जो आज किया था ना डेरिवेशन, वो आ गया हाफ। हाँ हाँ, डिफाइन सेल्फ इंडक्शन। पेज नंबर 3 पे एक और क्वेश्चन है, वो भी कर लो। पेज 3, सीबीएसई 2024। ये है ना 100 टन कॉइल, 100 टन कॉइल वाला क्वेश्चन। इसके नेक्स्ट वाले वो भी कर लेना, एमसीक्यू। गरिमा हो गया ये वाला 39, और वो वाला आईएससी 2025, अभी आईएससी वाला कर रही हूँ, फिर वो तो 39 स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आईएससी वाला उसमें तो वो यूज करना है, माइनस ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, यही है ना? क्या क्या दे रखा है बताओ मुझे इसमें। गरिमा बताओ क्या दे रखा है, रीड करो क्वेश्चन आईएससी वाला। क्वेश्चन 39। हाँ, क्या वैल्यूज क्या क्या दे रखी है इसमें? और लेंथ है 30 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 सेंटीमीटर ये कौन सा स्क्वायर। क्वेश्चन है? 39। 39 नहीं, 39 नहीं, ये वाला 39 तो हो गया ना अच्छा, स्टेट, ये फॉर्मूला बेस्ड था ना वो तो। इस फॉर्मूला था इसमें ना आई 39 में वन तो। इसमें क्या दे रखा नहीं, था? इसमें I1 है 15 एम्पेयर। आई 1 15 है, हाँ, और आई 2? 0। ठीक है। टाइम? और 0.2 सेकेंड्स। और एल और पूछा है? EMF 30 वोल्ट। हाँ, एल पूछा है। अच्छा, ईएमएफ कितना दे रखा है? 30 वोल्ट। बस हो गया। हम्म, एल हो जाएगा 0.4। नेक्स्ट करो सीबीएसई पेज 3 पे जो क्वेश्चन है वो कर लो। 2024 का क्वेश्चन है, 100 कॉइल जिसमें लिखा हुआ है। ईएमएफ निकालने में करंट से डिवाइड कर दो। ईएमएफ पता है तुम्हें, तो आर से डिवाइड कर दो तो करंट आ जाएगा। इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट पूछा होगा ना शायद।
39 हो गया था? नहीं, 39 तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। कर लिया है? क्या आंसर है? करना बोर्ड पे, पीछे देखा देखा होगा ना तुमने, क्या 39? कर लो, फॉर्मूला भेज दे, कितना है पीछे? हाँ तो भी करो, मैं कर देखता हूँ बोर्ड। हाँ, कैपिटल एन इज 500 ना। हाँ, 30 सेंटीमीटर को मीटर में करोगे कन्वर्ट, 0.3 मीटर आएगा। कर दो बोर्ड पे, करना। पहले वाले क्वेश्चन में कैपिट 39 में कैपिटल एन दे रखा है, उसको 30 सेंटीमीटर डिवाइड करना है, मतलब 0.3 मीटर से डिवाइड करना है। दिखाओ 39। कहाँ किया ही नहीं तुम 39? क्यों? म्यू नॉट एन स्क्वायर एल, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है। लेकिन सारी यूनिट मीटर में कन्वर्ट कर लेना। एल को 30 दे रखा है ना, तो 0.3 मीटर हो जाएगा। एन एफ 500। म्यू नॉट की वैल्यू बताइए तो मैं कितनी होती है, 4 पाई 10⁻⁷ ठीक है, कर लेना फिर। अभी ये कर लो, बाद में कर लेना उसको। नहीं हो रहा है ये? पढ़ो एक बार क्या है, रीड रीड करो आराम से, सुनाओ। 1 मिनट। 100। हाँ, 1.6 सेंटीमीटर। 1 मिनट। रेसिस्टेंस 5 ओम। हम्म। अच्छा, 250 पर सेंटीमीटर, दैट इज 250 × 100 पर मीटर। ये सोलेनॉइड है। इसका रेडियस कितना है? आगे बोलो। तो इसमें करंट I2 0 है, I1 1.5 है। तो टाइम भी अपने को दिया हुआ है। मतलब इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है और इसमें इंड्यूस, ये बेसिकली ये सेल्फ इंडक्टेंस का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है म्यूचुअल इंडक्टेंस का। अभी हमने हाँ, हाँ हमने अभी किया नहीं है ये। अभी करते हैं इसको एक बार, इसको अभी तुम छोड़ दो फिर। दिस इज नॉट सेल्फ इंडक्टेंस। ये वाला कर सकते हो, उसका एमसीक्यू जो है ना, नेक्स्ट 2023 का एमसीक्यू कर लो। इसी क्वेश्चन के नीचे ये नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे हम, इसी क्वेश्चन के नीचे सीबीएसई 2023 का एमसीक्यू है, वो कर लो। This will do in the next class when I finish mutual induction. हो गया एमसीक्यू? 2023, 2024 के नीचे एक क्वेश्चन है एमसीक्यू वाला। हाँ हाँ।
क्या है क्वेश्चन पढ़ना? स्क्वायर शेप्ड कॉइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, तो मतलब एन दे रखा है। ओके, इसके अंदर फील्ड है जो कि डिक्रीज कर रहा है, डीबी बाई डी टी दिया हुआ है। हाँ, इंक्रीज कर रहा है कितना? 1 टेस्ला पर सेकंड। अगर ये डिक्रीज कर रहा होता तो मैं यहाँ माइनस लगा देता, ठीक है। तो इंक्रीज मतलब पॉजिटिव है, ये +1। साइड तो उसका एरिया निकाल लेंगे। एरिया वुड बी A², सो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको तुम कन्वर्ट कर लो मीटर स्क्वायर में। ये आ जाएगा एरिया। क्या पूछा है? हम्म तो इसमें तुम्हारा बेसिक ईएमआई वाला फॉर्मूला लग जाएगा। -E = डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, है ना। तो डेल्टा फाई फाई होता है हमारा d∅dt कर लेते हैं। d/dt फाई का मतलब होता है NBA। परपेंडिकुलर है तो मतलब एरिया थीटा 0 हो गया। when they say the coil is perpendicular to the magnetic field, जो एरिया वेक्टर है वो पैरेलल हो गया मैग्नेटिक फील्ड के। ये सिचुएशन है। ये तुम्हारा स्क्वायर लूप है। when it is perpendicular to the magnetic field, basically इसका एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो cos NBA cos 0 लिख देना चाहिए मेरे को यहाँ पे, NBA cos 0। ऐसा हमने क्वेश्चन किया था लास्ट क्लास में सर्कुलर कॉइल का। तो ये हो गया, N कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, dB/dt। बस इसमें सारी वैल्यूज डाल दो। पुट ऑल द वैल्यूज। N पता है, A पता है, dB/dt पता है। 25 मिली इज 10⁻³ टाइम दे रहा, मिली सेकेंड था ये। 1 टेस्ला। हाँ, तो N इज 100, एरिया इज 10⁻², dB/dt इज 1। आ गया, EMF इज 1 वोल्ट। अगर ऑप्शन में -1 +1 दोनों हैं तो फिर तुम -1 लिखोगे करेक्ट आंसर। अगर सिर्फ +1 ऑप्शन में तो मतलब मैग्नीट्यूड उसने पूछ लिया है। यहाँ पे 0 भी ऑप्शन में दे रखा है क्या? हाँ, इनको देना चाहिए था। वाइल्ड आई टेल यू, यहाँ पे तुम्हें एरिया वेक्टर लूप जो था फील्ड के परपेंडिकुलर था। अगर मान लो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर तो फिर क्या होता? एरिया वेक्टर ये होता, हाँ, तो फ्लक्स फिर 0 होता। अगर दिया होता है एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो फ्लक्स 0 होता, तो इंड्यूस ईएमएफ इज 0 होता। उनको एक ऑप्शन 0 देना चाहिए था। काफी स्टूडेंट 0 लिख के आते, बिकॉज जब प्लेन का सरफेस फील्ड के परपेंडिकुलर है तो प्लेन का एरिया फील्ड के पैरेलल हो जाता है, बिकॉज फ्लक्स मैक्सिमम हो जाता है उस केस में। तो और क्वेश्चन तुम असाइनमेंट के करना, इसमें कई साल के पेपर दे रखे हैं ना मैंने, 23, 24, 25 IAC CBS। हाँ, लेकिन ये तो लेटेस्ट तो करनी ही है मैं, क्योंकि उससे पहले सिलेबस थोड़ा डिफरेंट था। तो 23 ऑनवर्ड्स तो सारे ही करने हैं तुम्हें। अगली क्लास का एजेंडा हमारा होगा, एक तो म्यूचुअल इंडक्टर कर लेंगे, और फिर AC जनरेटर कर लेंगे। ट्रांसफॉर्मर AC जनरेटर इसी चैप्टर का पार्ट है, जो कि 5 मार्क का आएगा। दोनों में चॉइस होगी, या एक भी आ सकता है, सबसे न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो जिससे मैंने कहा था साथ साथ इनको रिवाइज करते रहो चीज़ों को। देखो एक बार अभी जो आज मैंने किया उसमें कुछ है डाउट, जस्ट गो थ्रू इट। सर, हाँ, बोलो। शंट वाला पार्ट मैग्नेटिज्म में है ना? हाँ, जो शंट, जो पैरेलल रेसिस्टेंस कनेक्ट करते हैं टू कन्वर्ट गिल्वानोमीटर अमीटर, तो पैरेलल रेसिस्टेंस विच इज वेरी स्मॉल इन मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड शंट। पैरेलल वाला शंट कहलाता है।
जब तुम गैल्वानोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करते हो तो यू कनेक्ट ए वेरी स्मॉल रेसिस्टेंस इन पैरेलल, दैट रेसिस्टेंस इज कॉल्ड शंट। ये हमारा चैप्टर 4 में है। ये चैप्टर 4 में है, जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। अभी तुम्हारा जो टेस्ट हो रहा है पहले 3 चैप्टर का टेस्ट होगा, फिर अगले 2 चैप्टर का कर लेंगे, या तो फिर मैग्नेटिज्म, और ये भी इंक्लूड कर लेंगे उसमें। EMIC खत्म हो जाएगा नेक्स्ट 2 वीक में ये। मेरे ख्याल उसके बाद तो कोई दूसरा एक्स्ट्रा आ भी नहीं रहा होगा। लेकिन हम फिर भी आगे चलेंगे, हम कर लेंगे और एक चैप्टर, सो दैट यू नो वी आर अहेड ऑफ थिंग्स। ठीक है, एंडिंग द क्लास, सी यू नेक्स्ट टाइम। मीनवाइल क्वेश्चन करो, उनको रिवाइज करो। फिजिक्स को ऐसे ही करना होता है, जो पढ़ाया गया उसको दोबारा खुद से करो और फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन और कर लो। ठीक है, ऑल ओके राइट। सर।